what is happening right now is basically we are going to do the past papers of circle in today's class. The first part is ये आपके पास 2011 का सवाल है, मैं इसे सॉल्व कराता हूँ. ये रेफरेंस आप लोग देख सकते हो 970911 MJ 2020 का पेपर है ये, जिससे मैं सॉल्व कराता हूँ. So the first part is they are asking for the coordinates of point A and B. आपके पास A and B वाले coordinates की वो बात कर रहा है कि A and B के coordinates हैं A and B. The coordinates of A are this one and the coordinates of B जो है वो आपको already उन्होंने दे दिया 7,4 respectively. Find the equation of the circle C for which AB is a diameter. Find the equation of the circle for which AB is a diameter. Now this is exactly similar to the example जो मैंने करवाई थी आप लोगों को. ये exactly आपके पास same है, इसके अंदर कोई भी difference नहीं है. तो what is happening right now is कि I'm going to write down the coordinates first. हमने यहाँ पे coordinates लिखे -1, -2 और मैंने यहाँ पे B लिखा and B is going to be 7,4. I'm just giving you one example कि यहाँ पे हो क्या रहा है. So AB is a diameter. मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के चीजें समझा रहा हूँ कि हमने बनाया एक सर्कल and let's say this is a circle right now. एक सर्कल हमारे पास बना, परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. एक परफेक्ट सर्कल हमारे पास बन गया एंड लेट्स से दिस इज द कोऑर्डिनेट. ये हमारे पास ए वाला कोऑर्डिनेट है जो लाइक कर रहा है -1, -2 एंड द बी कोऑर्डिनेट इज लाइंग समवेयर ओवर हियर. ये हो गया हमारे पास 7,4. ये आपके पास ये साइज है मैंने बना दी यहाँ पे. अब इसके अंदर ना द फर्स्ट थिंग इज कि ए बी इज अ डायमीटर. सो व्हेनेवर ए बी इज अ डायमीटर सो दैट मींस कि इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर सर्कल का सेंटर लाई कर रहा होगा. लेट्स से कि दिस इज सी, ये सेंटर सी है हमारे पास. तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाली है दैट मींस आई नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सी and I need the distance, I need the radius also. So let's do the working for it. So the first working which I'm supposed to do right now is to take out the midpoint of AB, and for that I need to use the formula x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. x1 की जगह पे we are going to write -1, x2 की जगह पे we'll write 7 divided by 2 and y1 की जगह पे -2 plus 4 divided by 2 and that is going to be 6 divided by 2 and that is going to be 2 divided by 2. So finally the center coordinates are going to be center of a circle आपके पास आ गया 3,1. ये आपके पास center के coordinates आ गए 3,1. Moving forward, because you got the coordinates of the center, then you need the radius also for the equation of the circle. तो आपके उसके लिए क्या किया कि अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए व्हिच आर -2, -1, -2 and the coordinates of the center 3,1. I am going to take out the distance from these two coordinates. This is my x1, this is my y1, this is my x2 and this is my y2. I am going to use the distance formula in this case. So which is going to be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. मैं थोड़े बेसिक स्टेप को यहाँ पे मिस आउट करूंगा, वो आपको मैं वर्बली बता दूंगा, जरा उसको चेक करते जाना. सो इफ आई एम गोइंग टू फिगर आउट द डिस्टेंस दैट मींस कि मुझे यहाँ पे रेडियस निकालना है. सो द वैल्यू ऑफ x2 इज गोइंग टू बी 3 और x1 की वैल्यू इज -1. -1 है, नेगेटिव फॉर्मूले के अंदर भी है, तो नेगेटिव नेगेटिव दैट इज गोइंग टू बी +1. ये हो जाएगा. इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन द साइन तो मुझे बता दो ताकि मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं. y2 is 1 and y1 की वैल्यू इज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे. सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू इट. So this is going to be 4 square and this is going to be 3 square, and you guys already know the answer of this part. This is going to be 4 square 16 plus 9 and square root of that is going to be square root of 25. So the value of radius is going to be 5. ये आपके पास 5 आ गया, आपके पास रेडियस आ गया, आपके पास सेंटर आ गया. You have to write the equation of a circle. So equation of the circle is always written in this form. आपने अगर फॉर्म लिखनी है, so you have x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to r square. The value of a is 3. This is the value of a. The value of b is 1. So x minus 3 whole square, y minus 1 whole square is equals to 5 square. And finally equation of a circle is going to be x minus 3 whole square plus y minus 1 whole square is equals to 25. That is going to be your equation of a circle. ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ गई एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू गेट 4 मार्क्स इन दिस पार्ट. आपको आराम से 4 मार्क्स मिल गए. बेटा इज इट क्लियर एवरीवन? इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज डू लेट मी नो ताकि मैं उसे वापस से एक्सप्लेन कर सकूं. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट. नाउ दे आर सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है t टू द सर्कल c एट पॉइंट b.
सो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम वन मोर टाइम. हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के ऊपर हमारे पास क्या हुआ, टू द सर्कल सी एट द पॉइंट बी. लेट्स सपोज दिस वाज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी राइट नाउ एंड दिस इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल सी. सेंटर को भी मैं मार्क कर रहा हूँ. ये हमने सेंटर भी मार्क किया, दिस इज अ सेंटर. ये हमने सी को मार्क किया और एक लाइन जा रही है जो इधर बी के ऊपर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है ओनली एट अ सिंगल पॉइंट. सो वी नीड टू फिगर आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, इफ आई नीड टू फिगर आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन फॉर ब्लू लाइन, first I need the gradient. देखो, I have already like studied this thing. No, Rija, we don't simplify the equation. Basically, we have to write this equation in this form also. हमें सिर्फ इसी फॉर्म के अंदर लिखना होता है बस. हम उसे वो नहीं कराते, सिंप्लीफाई नहीं कराते. हम इसी फॉर्म में लिख के छोड़ देते हैं. मतलब आप बहुत वो बड़ा काम हो जाएगा. ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज के आपने देखा यहाँ पे कि इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि यार इसने सिंगल पॉइंट के ऊपर टच किया. सो यू गाइस इजीली नो कि व्हेन एवर रेडियस और ये टेंजेंट की लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती है, सो दिस इज लाइन इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर विद ईच अदर. सो इफ यू वांट टू फिगर आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए आपको इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए और आपको बी के कोऑर्डिनेट चाहिए. तो बी के कोऑर्डिनेट्स तो पता है बट ग्रेडियंट नहीं पता. लेकिन आई नो द ग्रेडियंट ऑफ सी बी जो हम निकाल सकते हैं आराम से बाय यूजिंग the coordinates of C and B. And by that, because I can use the relationship of perpendicular lines, so we can easily figure out the gradient of this blue line also. So let's do the working for it. So first I'm going to do the working for this line. Center of the circle is 3 comma 1 and B is 7 comma 4. So I'm going to use the formula for gradient y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is x1, this is y1, this is x2, this is y2. I'm going to put down the values 4 minus 1, y2 minus y1, 7 minus 3. This is going to be 3 upon 4. ये आपके पास m1 की वैल्यू आ गई, the gradient of the green line. अगर मुझे blue line का gradient निकालना है, so coordinate geometry के अंदर we have studied कि if I want to take out the gradient of the other perpendicular line, then just do the reciprocal of it and just change the sign. So the gradient of this blue line is going to be negative 4 upon 3. Now by using negative 4 upon 3 and the coordinates of B, which we already know from the previous part and which was 7 comma 4, so I'm going to use the equation of a straight line. That is going to be y minus y1 is equals to mx minus x1 and I'm going to put down the values. ये x हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया. 4 आपने लिखा यहाँ पे y1 की जगह के ऊपर. Then you have negative 4 over 3 x minus 7, just shift the 3 on the other side. तो ये multiply हो जाएगा and then you have negative 4x minus 7. Just simplify this equation. So you have 3y minus 12 is equals to negative 4x and then plus 28 and just move the things around. और ये हो जाएगा आपके पास 3y and moving 4x on the other side. 12 को आपने उस तरफ शिफ्ट किया एंड फाइनली यू आर गेटिंग द वैल्यू एज आपके पास यहाँ पे आ गई 3y plus 4x and that is going to be 40. So that's how you're going to get 4 marks to show that equation of the tangent. आपके पास यहाँ पे ब्लू वाली लाइन इक्वेशन इस तरह से निकल आई. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पार्ट, ये जो पार्ट है आपके पास नेक्स्ट वाला, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये उसमें डिस्कस करेंगे. ये वाला पार्ट अभी मैं नहीं कराऊंगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैं पार्ट कराऊंगा. सो करेंटली 4 मार्क्स यू हैव गेन फ्रॉम दिस बी पार्ट एंड 4 मार्क्स, सो 8 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट पार्ट. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर वेरिएंट ऑफ 2020 पेपर 1-2 है हमारे पास. ये इन दिस पार्ट कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी is x square y square minus 8x plus 4y minus 5. Now this equation मैं overview देता हूँ, मैं overview थोड़ी देर में देता हूँ सारा. The equation of a circle with center C, x square plus y square minus 8x plus 4y. This is the expanded form. Okay, so we are going to solve the other part of this question और ये हमारे पास है मई जून 2020 से पेपर 1-2 इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो नाउ इन दिस फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज गिवन यू इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. ये आपके पास ऑलरेडी एक्सपेंड हुआ है. तो जब भी एक्सपेंड हुआ होगा तब आप क्या करोगे, आप जरा इस चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व करके चलो कि एक्सपेंड जब भी हुआ होता था, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फिगर आउट द रेडियस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. सो सबसे पहले हम लोकेट करेंगे, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन व्हिच इज गोइंग टू बी x square plus y square minus 8x plus
4y minus 5 is equals to 0 and I'm going to copy down the expanded form के expanded form हमारे पास थी क्या, तो expanded form हमारे पास थी x square plus y square, we have plus 2gx plus 2fy and you have positive c. ये आपके पास situation थी जो यहाँ पे हो रही है, right? So from this situation I need to identify the values and हम देख रहे हैं कि coefficient of x यहाँ पे -8 है और यहाँ पे 2g है, so I'm going to write 2g is equals to -8, so the value of g is going to be -8 divided by 2, तो g की वैल्यू इस तरह से आपके पास -4 आ गई, so -4 is the value for g. Moving forward for the value of f, again the coefficient of y is 4 और यहाँ पे 2f है, to 2f is equals to 4 and the value of f is going to be 4 divided by 2, that is going to be 2. ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई, f और 2 की वैल्यू आ गई. Now for c I can easily identify कि c की वैल्यू है -5. If I am going to locate the center, तो center आप लिखते थे -g, -f, तो अगर 4 ऑलरेडी नेगेटिव के अंदर है, सो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, सो दैट इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. तो आपके पास सर्कल का सेंटर आ गया 4, -2. ये आपने सबसे पहले कर दिया. नाउ फॉर रेडियस आई विल डू द वर्किंग फॉर रेडियस. रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. आपने ये फॉर्मूला यूज किया, जी स्क्वायर की प्लेसमेंट के ऊपर आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू व्हिच वाज -4, ये कराया और f की वैल्यू हमने पुट करी, that was 2 square and minus 5 and I'm going to solve the complete part. ये आपने solve करा, ये हो गया 16 plus 4 and plus 5, so that combines 16 plus 4 20 and that is going to be 25, so the value of radius is going to be 5. आपके पास radius की value 5 आ गई, तो आपने radius भी निकाल लिया, आपने center भी निकाल लिया, so that's how you're going to get 3 marks in this part. I'm moving forward towards the other part, उस वाले part की तरफ हम move करते हैं. Now for the next part, what we have right now is कि B part के अंदर they are asking, बेटा if there is any confusion please do let me know. देखो in the B part, the point P 1, 2 lies on the circle. Point 1, 2 lies on the circle. Show that the equation of tangent to the circle at P is 4y is equals to 3x plus 5. So I'm drawing the figure ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो कि क्या बात हो रही है. Exactly the same working. Center of a circle C is already marked. मैंने यहाँ पे C को mark किया and this is for example P and the line is intersecting, this blue line is again intersecting at a single point at P. तो आपको इस blue वाली line की equation निकालनी है. So again हमने वही वाली चीज करी कि यार center से अगर जब मैं P को connect करता हूँ, so this is going to be perpendicular और हमें पता है कि यार ये वाला perpendicular का relation बनेगा. So first of all again I'll do the same working which I have done in the previous part. तो वही सेम वर्किंग यूज हो रही है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस पार्ट. सो आई एम यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 4, -2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 1, 2. फर्स्ट आई एम गोइंग टू गेट द ग्रेडियंट. दिस इज x1, दिस इज y1, x2 and y2. Formula of gradient is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So value of y2 is 2 माइनस ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. y1 की वैल्यू नेगेटिव थी, फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव था, दोनों एड अप हो गए प्लस हो गए. एंड x2 इज 1 एंड x1 इज 4, तो 1 minus 4, so that is going to be m1 is equals to 4 upon -3. ये आपके पास आ जाएगा. एंड इट्स द सेम वे if I am going to figure out the value of m2, तो रेसिप्रोकल कराओ और नेगेटिव का साइन से मल्टीप्लाई कराओ, तो m2 की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4. So once you got the value of m2, now you need to figure out the equation of the straight line. So आपके पास coordinates already given है p के, which you have to place in the equation. आपने सिर्फ coordinates वगैरह को place करने हैं. So the coordinates of p are 1, 2. I am going to use the equation y minus y1 equals to mx minus x1. और ये x1 हो गया, ये y1 हो गया. I'll be writing y minus 2 m की जगह पे 3/4 x minus 1. 4 is going to be multiplied, तो ये हो गया y minus 2 3 and this is going to be x minus 1, so this will become 4y minus 8 3x minus 3. So 4y is equals to 3x minus 3 plus 8. So as you can see कि exactly हमारे पास 4y is equals to 3x plus 5. We are getting the same equation जो हमें उन्होंने प्रूव करने के लिए दिया है. सो वी आर गोइंग टू गेट 3 मार्क्स इन दिस पार्ट ऑल्सो. तो यहाँ पे भी हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली. दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट. आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट.
देखो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर वीक। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा भी बहुत आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो यहाँ पे आप फंसना स्टार्ट कर दोगे। सो नाउ फॉर दिस पार्ट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज के यू हैव दिस पार्ट, आपको बोला गया द पॉइंट Q also lies on the circle and PQ is parallel to the x-axis. Okay, now I'm going to draw the diagram for you guys. So there is a circle right now, एक circle हमने बनाया और फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेंटर ये रहा हमारे पास, द सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आर 4, -2। फॉर एग्जाम्पल ये P वाला पॉइंट है, यहाँ लाई कर है और Q वाला पॉइंट यहाँ लाई कर है। सही है, कह रहे द पॉइंट Q ऑल्सो लाइज ऑन द सर्कल PQ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यार पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हमने ये पढ़ा था कि वेन एवर एनी लाइन, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सिस मैंने बना दी और फॉर एग्जाम्पल ये 1 है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये 2 है। तो अगर मैं ये ग्रीन लाइन बनाऊंगा जो 2 से अगर इंटरसेक्ट कर रही होगी तो इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। व्हेनेवर द लाइन इज पैरेलल विद द एक्स एक्सिस, तो पॉइंट अगर P यहाँ पे हो, पॉइंट Q यहाँ पे हो, तो इन दोनों का जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो एग्जैक्टली आपके पास क्या होगा, सेम होगा। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि इन दोनों का जो y वाला कोऑर्डिनेट है दैट कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। ये पहली अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। कह रहे द पॉइंट Q, आपने देखा कि यार P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वर ऑलरेडी गिवन टू यू एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वर 1, 2। तो अगर P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 तो Q का आपको पास जो कोऑर्डिनेट आ गया, आपको पता चल गया कि Q का भी आपके पास जो Y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास एग्जैक्टली 2 ही होगा, बिकॉज दे द लाइंस वर पैरेलल। और मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि जब भी आपके पास पैरेलल बनेगी तो Y कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। सही है, क्योंकि आपके पास Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल आई, दैट इज 2। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर थिंग, हमने ये पढ़ा था कि अगर लेट सपोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक कॉर्ड है ये वाला और इनका अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो या सेंटर से अगर चलो एक लाइन ड्रॉप करते हो, लेट्स मेक इट वेरी इजी। थोड़ा सा इसको सेंटर को रीलोकेट कर देते हैं ताकि वो चीज़ों के लिहाज से अगर प्रॉपर आपको समझ में आए। देखो थोड़ा सा मैं चीज़ों को एडजस्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, और लेट्स सपोज ये पॉइंट इस तरह से। देखो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि व्हेन एवर देयर इज अ लाइन जो सेंटर से अगर कॉर्ड की तरफ हिट करती थी तो ये आपके पास क्या होता था, इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या होता था, परपेंडिकुलर का वो बनता था, ये आपके पास इस तरह से होता था। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, बोथ डिस्टेंस आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। तो ये दोनों डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जस्ट ऑब्जर्व दी एक्स वाला कोऑर्डिनेट। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास एक्स वाला कोऑर्डिनेट इज 1 और यहाँ पे हमारे पास एक्स वाला कोऑर्डिनेट है 4, और यहाँ पे मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट नहीं पता, सो आई हैव x, 2। सो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर मैं मिड वैल्यूज की बात करूँ 1 की, यानी कि इसकी बात करूँ और मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ और इसकी बात करूँ, तो ये इन दोनों का काइंड ऑफ मिड वैल्यू है 4। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम वर्किंग। याद होगा आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मिड पॉइंट के लिए हम रिवर्स वर्किंग करते थे। सो आई एम गोइंग टू फॉलो द ई स्टेप। हमें आंसर पता है कि इन दोनों के एक्स का जो मिड वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। सो आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस इज माई x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। मैं सिर्फ उससे यूज कर रहा हूँ बिकॉज y की तो वैल्यू आ चुकी है। आई एम राइटिंग 4 इन द प्लेसमेंट ऑफ x1 आई एम गोइंग टू राइट 1 और x2 की जगह पे आई एम गोइंग टू प्लेस x। ये मैंने x लिखा और इसे मैंने डिवाइड बाई 2 कराया। ये वहां पे जाके 4 मल्टीप्लाई बाई 2 is equals to 1 plus x and that is going to become 8 is equals to 1 plus x और ये होगा 8 minus 1 is equals to x। तो x की वैल्यू आपके पास इस तरह से आ गई 7। सो फाइनली आपके पास यहाँ पे q के कोऑर्डिनेट्स निकल आए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर गोइंग टू बी 7, 2। मैं एक बार वापस से इस वाले स्टेप को रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो इन दिस स्टेप व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि द फर्स्ट थिंग इज कि ये आपके पास लाइन पैरेलल है। सो लाइन पैरेलल होने से ये हुआ कि आपके जो y कोऑर्डिनेट है दोनों के वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, एंड y कोऑर्डिनेट जब मैच कर रहे हैं आपके पास तो आप लोगों ने y कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखते हुए आपने x वाला कोऑर्डिनेट निकाला। x वाले कोऑर्डिनेट के लिए क्या करा कि बिकॉज c से अगर आप जैसे ही लाइन ड्रॉप करते हो कॉर्ड के ऊपर तो ये इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और जब ये इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इन दोनों का मिड पॉइंट 4 आया था एंड यू हैव टू यूज द रिवर्स स्टेप। अदरवाइज आप ये भी चेक कर सकते हो कि 1 से लेकर 4 जाने के लिए आपने 3 ब्लॉक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है,
तो 4 से लेकर ऑनवर्ड जाने के लिए 3 ब्लॉक का ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो 4 + 3 इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिगर इट आउट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मोस्ट डिटेल वन, उसको जरा हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को. हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि दो लाइंस हैं जो इसको इंटरसेक्ट करती हैं. द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट P and Q मीट एट T. सो लेट्स गिव यू वन सिंपल सिनेरियो कि हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है. आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम अगेन. और ये लाइन मैंने यहाँ पे बनाई, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक T वाला पॉइंट था एंड D इज समवेयर. आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट रफली. T हमारे पास ये वाली लाइन बनी और फिर ये वाली लाइन बनी. नाउ इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम शेप जो हमने काइट का उस दिन बनाया था प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हुए. एग्जैक्टली आपके पास वही शेप हो रहा है. दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q. ये वाला आपके पास पॉइंट आ रहे हैं, ये हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो रही है. कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T. T के कोऑर्डिनेट्स निकालो. अब एज यू कैन सी कि यार दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट. दोनों लाइन सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दैट सिंगल पॉइंट इज T. तो इजी वर्ड्स के अंदर दे आर आस्किंग फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, PT का और QT का. दे आर आस्किंग फॉर दिस लाइन. पहली तो ये बात है हमारे पास. नाउ द सेकंड थिंग इज कि द मेन प्रॉब्लम विद दिस लाइन इज कि हमारे पास यहाँ पे सेंटर भी हमें पता है कि दिस इज द सेंटर राइट नाउ. और इस सेंटर के थ्रू हमारे पास ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है. सो आई कैन इजीली फिगर आउट कि यार यहाँ पे हमारे पास QT का और TP का ग्रेडियंट क्या होगा और वहां से कर आई कैन मूव टूवर्ड्स द अदर सिचुएशन. सो उसकी तरफ हम मूव कर सकते हैं. लेट्स डू द वर्किंग फॉर इट. फर्स्ट आई एम गोइंग टू फिगर आउट. मैं यहाँ पे C के कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 4, -2. Then I'm going to write down the coordinates of Q and then I'm going to figure out the gradient of this purple वाली line. y2 minus y1, y2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया हमारे पास. और सेकेंड हमारे पास ये आ गया, दैट इज गोइंग टू बी दिस लाइन. अच्छा हमारे पास ग्रेडियंट बल्कि ऑलरेडी है. लास्ट वाले पार्ट के अंदर वी हैव द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन. हमारे पास कौन सा वाला ग्रेडियंट है? हमारे पास इस वाले का ऑलरेडी ग्रेडियंट है. जो P वाली लाइन मैंने बनाई थी इसका ग्रेडियंट हमारे पास 3/4 है. सो इफ द ग्रेडियंट, रिफ्लेक्शन वाले केस को जरा करते हैं कि इस लाइन का ग्रेडियंट है 3/4 एंड आई नो द लाइन, हमें पता है, तो TQ का ग्रेडियंट भी ऑलरेडी हमारे पास आ सकता है. नाउ हाउ कैन अ ग्रेडियंट ऑफ TQ इज, मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास ये रिफ्लेक्शन का केस ही हो रहा है, सो अगर इस लाइन का ग्रेडियंट इज कमिंग 3/4 तो सिंपली यू कैन इजीली गेट द ग्रेडियंट ऑफ TQ if the gradient of PT is 3/4. So the gradient of QT is going to be -3/4. That's how you are going to take out the gradient. And you know the coordinates of Q which are 7, 2. ये आपके पास है तो हमने लिखा y minus y1 is equals to mx minus x1. I'm going to just take out the equation of this line. ये हमारे पास हो जाएगा y minus 2 is equals to -3/4. -3/4 ये हो गया x minus 7. 4 को हमने उस तरफ शिफ्ट कराया, y minus 2, -3, x minus 7. So this will become 4y minus 8, -3x plus 21. ये हो जाएगा 4y and I'm going to move towards this side. 3x ये लिखा plus 21 और ये हो जाएगा आपके पास plus 8. And finally the equation of this line is going to be 4y plus 3x is equals to 29. ये आपके पास QT की इक्वेशन आ गई. So this is the equation of QT. अब बेटा आपके पास QT की इक्वेशन आ चुकी है, आपके पास PT की इक्वेशन है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कराओगे तो यू आर गोइंग टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T. तो मैं एलिमिनेशन का मेथड यूज करता हूँ. PT की इक्वेशन हमने प्रीवियस वाले पार्ट के अंदर निकाली हुई है. द इक्वेशन वाज 4y minus 3x is equals to 5 और यहाँ पे इक्वेशन है 4y plus 3x is equals to 29. I'm going to just eliminate x. ये हो जाएगा 8y और 29 और ये दोनों आपस में एड अप होने के बाद I'm going to get the value. ये आ जाएगी 34 and y is equals to 34 divided by 8. So I'm going to get them the value and this is going to be 17/4. ये आपके पास y की वैल्यू आ गई. Once you got the value of y, आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आराम से आ जाएगी. वॉट एवर इक्वेशन यू वांट टू यूज, आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 4y minus 3x is equals to y की प्लेसमेंट के ऊपर वी आर राइटिंग 17/4 minus 3x is equals to, ये 4 से 4 कैंसिल आउट कराया, 17 minus 3x is equals to 5 minus 3x, 5 minus 17, so minus 3x, you have -12. ये नेगेटिव नेगेटिव आपने वो कराया, 3 को डिवाइड कराया, 12 divided by 3, so the value of x is going to be 4. So finally the coordinates of T are going to be 4,
17/4, these are the coordinates of D. या आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाले. So अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेंड इट. सो बेसिक कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. अगर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा भी वीक होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा. दिस वाज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन. पीटी का ग्रेडियंट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट 3/4, एंड सिंपली टी को ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी जस्ट a change of a negative sign. Gradient will be, the value is going to be exactly same. अब मैं आज की क्लास का एक लास्ट सवाल करता हूँ. सो वी हैव दिस थिंग एज अ लास्ट वन. सो इन दिस पार्ट the coordinates of 2 points A and B are -7, 3 and 5, 11 respectively. These are the two coordinates which are already given. Show that the equation of perpendicular bisector. Perpendicular means 90 degree and bisector means half. So we have already like we have already done this thing in coordinate geometry. तो ये बड़ा easy सा step है. सबसे पहले we need to figure out the midpoint. So for midpoint, I'm going to use the formula of this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. So x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. So in the placement of x1, I'll write -7 plus 5 divided by 2. Y1 we have 3 plus 11 divided by 2. So you have 2, -2 divided by 2, you have 3 plus 11, 14 divided by 2. And finally, it is going to be -1, 7. That is going to be the midpoint of the line. The coordinates of 2 points, ये आपने midpoint यहाँ पे निकाल दिया. आपके पास यहाँ पे AB का midpoint यहाँ पे निकला है. Now moving forward towards the midpoint, आपने जब midpoint निकाला, so उसके बाद you need to take out the gradient. आपको यहाँ पे gradient निकालना पड़ेगा. So M of AB, gradient निकाला, formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. The value of y2 is going to be 11 minus y1 is 3, और ये हो गया आपके पास 5 minus -7, and that is going to be 11 में से 3 आप माइनस करते हो, so you are going to get the value of this thing. ये 8 आ जाएगी. 5 plus 7, that is going to be 12, and if you simplify तो आपके पास m1 की वैल्यू आ जाएगी. सिंप्लीफाई कराने के बाद टेबल ऑफ 4 2/3 आ जाएगा. तो ये आपके पास 2/3 is going to be the gradient of this line. ये आपके पास m1 की वैल्यू आ गई. जब m1 की वैल्यू आ गई और आपको वैल्यू निकालनी है m2 की, तो ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर लाइन. तो m2 का आपके पास हो जाएगा जस्ट रेसिप्रोकल 3/2 एंड पुट अ नेगेटिव साइन, और आपने कोऑर्डिनेट्स यूज करने -1, 7. यूज द इक्वेशन y minus y1 is equals to m x minus x1. आपने y1 की जगह पे लिखा 7 और m की जगह पे लिखा -3/2. x माइनस माइनस +1 हो जाएगा. 2 वहां पे शिफ्ट कराया. सो दिस गोइंग टू बी 7 and -3 x plus 1. ये हो जाएगा 2y minus 14 minus 3x minus 3. सो 2y और 3x को इधर शिफ्ट करो. 3 with a negative sign, ये negative sign के साथ है +14. This is going to be 11. So 3x plus 2y is equals to 11. So that was a part of coordinate geometry, जो कि easy way के अंदर हो गया. थोड़ा सा हमारा coordinate geometry भी यहाँ पे recall हो गया. So we are done with the first part. Now moving forward towards the next part. So this is the part. A circle passes through A and B. A circle passes through A and B and its center lies on the line. This line. सही है, इस लाइन पे लाई करता है. जरा मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ कि what they are asking right now. So I am going to draw the diagram ताकि आपको समझ में आए कि किसकी बात करें. ये मैंने एक सर्कल बनाया and let's say these were the 2 points. exactly मैं मार्क मतलब exactly नहीं मार्क कर रहा, रफली मैं मार्क कर रहा हूँ. ये 2 पॉइंट्स थे हमारे पास, और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा इनको वो कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं ताकि चीज़ें हमें बेहतर तरीके से समझ में आए. दीज वर द 2 पॉइंट्स. ये हमने मार्क किया ए और एक हमने मार्क किया यहाँ पे बी. सो ए एंड बी वर द 2 पॉइंट्स, और इन दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पता है, विच यू ऑलरेडी नो कि अगर ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे होगा मार्क. ये जरा मैं बना लेता हूँ, ये लाइन बना लेता हूँ, और अगर इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं बनाऊंगा, सो दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मस्ट बी गोइंग थ्रू सी. हमने पॉइंट में डिस्कस किया था, ये सी से जरूर पास करेगा. पहली तो ये बात है. अब नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, मैं इसके लाइन का कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंटेशन मैं कराऊंगा ताकि चीजें ना हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो. सो करेंटली व्हाट दे आर आस्किंग राइट नाउ कि हमारे पास a circle passes through A and B and its center lies on the line. एक लाइन पे लाई करता है, एक ये रही, और वो दूसरी लाइन जो है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दूसरे कलर से बनाता हूँ. दूसरी लाइन आपके पास जो है वो समवेयर यहाँ पे कहीं पास कर रही है. इसको मिटा देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे. सो दिस ब्लू लाइन बेसिकली शोज
the perpendicular bisector of AB and there is another line which is passing through the center of the circle. Let's say वो U पास करिए कहीं पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये लाइन बना दी. इस लाइन की इक्वेशन है 12x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 70 और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमने अभी अभी निकाली है and that equation I'm going to write it 3x plus 2y is equals to 11. Both lines are intersecting at the same point which is point C. दोनों लाइन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. नाउ अगर मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाता, if I'm not going to draw the diagram, so I cannot clear the representation कि what is happening right now with the situation right now. तो ये सिचुएशन को क्लियर आउट करने के लिए हमें डायग्राम बनाना जरूरी है. So as you can see, the perpendicular bisector of AB and this line are intersecting as a common point which is C. So I want to figure out the point of intersection. तो आई एम गोइंग टू यूज द साइमल्टेनियस मेथड जो हमने यूज करा, एलिमिनेशन का बड़ा सिंपल सा मेथड है, उसे यूज करते हैं. So first I'm going to write equation number 1 which is 3x plus 2y is equals to 11 perpendicular bisector of AB. Then उसके बाद हम लिखते हैं 12x minus 5y is equals to 70. हमने यहाँ पे एलिमिनेट करना है, मैं एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ पे x को, तो मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय -4. जब आपने -4 से मल्टीप्लाई कराया तो -12x हो गया और नेगेटिव ये हो गया आपके पास -8y एंड दिस इज गोइंग टू बी -44. दिस इज गोइंग टू बी 12x, दिस इज गोइंग टू बी -5y. ये -5y था, ये हमने एज इट इज लिख दिया और यहाँ पे हमने लिखा 70. अब इन्हें सॉल्व करा है, 12x से 12x कैंसिल हो गया, दोनों को आपस में एड अप करा है, वी आर गेटिंग 13y और 70 में से 44 आप माइनस कराते हो, आपके पास आएगा आंसर 26 और 13y विद अ नेगेटिव साइन. So again I'm going to simplify this thing in negative 26 divided by 13. So negative y is equals to, so the value of y is going to be -2. जब आपके पास y की वैल्यू निकल गई, so you can use any equation which you want. और आपने इक्वेशन निकाली है सर्कल की, तो जरा इसको फोकस करके करते हैं. पहले तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आएंगे कंप्लीटली. अब जब आपके पास y की वैल्यू आ गई, बेटा कोई भी इक्वेशन यूज करो, यूज इक्वेशन नंबर 1 3x plus 2y is equals to 11. आपने यहाँ पे 3x लिखा, 2y की जगह पे 2 लिखा, 11 लिखा. 3x -4 is equals to 11. So 11 plus 4 that is going to be 3x is equals to 15. x की वैल्यू आ गई 15 divided by 3 और ये आ गई 5. So the coordinates of the center of a circle which are coming right now, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं 5, -2. देख लो, -2 और वैल्यू ऑफ y और x की वैल्यू आपके पास 5 आएगी. बेटा कोई मसला है तो प्लीज बता दो. ये 5, -2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C. अब हमें यहाँ पे चाहिए कि यार रेडियस क्या है, बिकॉज इक्वेशन के लिए ना आई नीड रेडियस आल्सो. तो रेडियस के लिए देखो, लास्ट वाले पार्ट के अंदर एग्जामिनर इज ऑलरेडी गिवन अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B. सो A के कोऑर्डिनेट्स थे -7, 3 और B के कोऑर्डिनेट्स थे 5, 11. तो आप अगर सेंटर से लेकर यहाँ तक फाइंड कर दो तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियस. तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A -7 and 3. आई एम गोइंग टू टेक आउट द डिस्टेंस फॉर्मूला जो मुझे रेडियस दे देगा. सो x2 minus x1, x2 is 5 माइनस ये हो जाएगा +7 and y2 की वैल्यू is -2 and -3 whole square that is going to be 12 square. ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और फाइनली ये हो जाएगा 144 because you have a negative number, so this is going to be 25 and 44 you are going to add it, ये हो जाएगा 169 and the square root of 169 is going to be 13, so the radius is going to be 13. So you got the radius, you got the center. आपके पास सेंटर कहाँ पे है, मैं मार्क कर रहा हूँ. ये आपने सेंटर आ गया, ये आपका रेडियस आ गया. यू वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन, सो x minus a होल स्क्वायर y minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. a की जगह पे आपने वैल्यू प्लेस करी, द वैल्यू ऑफ a इज गोइंग टू बी 5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -2, तो ये हो जाएगा y plus 2, नेगेटिव प्लस हो गया और 13 का स्क्वायर. सो फाइनली x minus 5 स्क्वायर प्लस y plus 2 whole square is equals to 169 is going to be your equation of circle. तो ये आपके पास 2020 का पास्ट पेपर था, मेजून का, ये हमने कंप्लीट कर दिया है आज की क्लास के अंदर.